Good morning, dear students. Today in this video we will do the question number 2 and 3 of the exercise 3.2. Now let us see the question number 2 here. Fill in the blanks and name the property used at each step. You have to fill in the blank and you have to name the property which you are using. Now see here, the A part is 53120 into, in bracket it is given 45 plus 10 is equal to 53120 into 45 plus blank into 10. Now see here, you have to identify the form first. Now which form is this? See here, A into in bracket B plus C. So जब A into in bracket B plus C होता है तो हम क्या यूज करते हैं? A into B plus A into C. Means first of all you have to multiply 53120 and 45. Then you have to multiply 53120 and 10. पहले 53120 का multiplication 45 से करेंगे और फिर उसका multiplication 10 से करेंगे. Now see here. So what in this blank should come? Now see here. 45 से multiply तो हो चुका. 53120 into 45. Now देन अ प्लस साइन. देन अब क्या होना चाहिए था? फिर 53120 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए था 10 से. अब यहाँ 10 तो है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए? 53120. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन विच इज A इंटू ब्रैकेट B प्लस C. क्या होता है? A इंटू B प्लस A इंटू C. सो व्हाट इट शुड कम हियर? A इज व्हाट? 53120. Now the next question is 53120 into in bracket 10 minus 32. Now see here, in the first question you can see in the bracket which operation? Plus addition operation. So the A part is the distributive property of multiplication over addition. Now here which sign is used inside the bracket? A negative sign. Okay, now see here again, this is the form of distributive property. Okay, so A into in bracket B minus C, what it comes? A into B minus A into C. So A is 53120, B is 10 and C is 32. That means 53120 का मल्टीप्लीकेशन पहले 10 से होगा और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन 32 से होगा. तो फर्स्ट फिल इन में क्या आ जाएगा? 53120. देन इंटू 10 माइनस 53120. अब हमने 10 से तो कर दिया, अब हमने किससे करना है मल्टीप्लीकेशन 53120 का? 32 से. तो अब ब्रैकेट यहाँ पे फिल इन में क्या आ जाएगा? 32. नाउ सी हियर, ब्रैकेट के अंदर साइन कौन सा है? माइनस का. सो दैट इज वाई दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द properties. Evaluate means you have to solve. You have to find out the answer by solving. Name the property applied at various steps, and you have to name the property also which you are applying. Now see here, the first part is 2345 into 442 minus 2345 into 3. Now see here. See these two numbers. Here also 2345. Okay, then after minus here also in multiplication with 3 which is the number 2345. यहाँ पे भी 2345 है, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में? 442 के साथ. और यहाँ पे भी 2345 है, किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में? 3 के साथ. तो अब आपको यहाँ पे भी 2345 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2345 दिख रहा है. तो दैट मीन्स हमने क्या ले लेना है? 2345 कॉमन ले लेना है. ओके, नाउ हियर अ मल्टीप्लाई साइन. नाउ सी हाउ वी विल टेक कॉमन. नाउ सी हियर 2345 जब हमने इस टर्म से कॉमन लिया, अभी हमें सिर्फ इतना देखना है, ठीक है बेटा? 2345 जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? 442. ठीक है, वो हमने ब्रैकेट में ले लिया. नाउ सी हियर 442 के बाद क्या है? एक माइनस का साइन, सो वी विल अप्लाई अ माइनस साइन. नाउ सी हियर अगेन फ्रॉम दिस पार्ट हमने क्या ले लिया? 2345 कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा? 3. सो 2345 तो कॉमन आ गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन, और ब्रैकेट में क्या बचा? 442 माइनस और यहां से 3. सो इस फॉर्म को आइडेंटिफाई करो.
Which form is this? This is the distributive property of multiplication over subtraction. Why subtraction? Because bracket के अंदर sign कौन सा है? Subtraction का. Now see here one important thing. I told you in the distributive property कि a into in bracket b minus c is equal to a into b minus a into c. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये वाली फॉर्म गिवन हो और आप ये वाली फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है. अब आप देख सकते हो ये क्या था, दिस इज दिस a इंटू बी माइनस a इंटू सी. दिस इज द फॉर्म a इंटू बी माइनस a इंटू सी. तो अब इससे हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, a इंटू इन ब्रैकेट b माइनस सी. कैसे बनी, हमने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. कॉमन मीन्स जो दोनों में आपको अपीयर हो रहा है, तो वो चीज क्या हो गई, कॉमन हो गई, सेम हो गई. यहाँ पे भी 2 3 4 5 है और यहाँ पे भी 2 3 4 5 है. ओके, नाउ बाय द रूल ऑफ द BODMAS हमने क्या सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट. सो सी हियर 4 4 2 minus 3 is 439. So we will multiply these two numbers and this is the required answer. So यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. ओके, ये पार्ट था हमारे पास यहाँ पे, और हमने फॉर्म कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास अब, ये वाला a इंटू बी माइनस सी. Now see here the next question is 7892 into 2 plus 7892 plus 7892 plus 7892. Now see here, यहाँ पे तो 7892 के साथ 2 है मल्टीप्लिकेशन में, पर क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है. बट हमें क्या पता है कि जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन 1 से करते हैं तो वो हमें नंबर एज अ रिजल्ट खुद मिल जाता है. तो आप 7892 को क्या राइट कर सकते हो, 7892 इंटू 1. रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, ऑटोमेटिकली 7892. सिमिलरली आप इस वाले 7892 को भी क्या राइट कर सकते हो, 7892 इंटू 1. अगेन प्लस इस वाले 7892 को भी क्या राइट कर सकते हो, 7892 इंटू 1. नाउ अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 7892 है, यहाँ पे भी 7892 है, हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक 7892 कॉमन. ठीक है, यहाँ पे हमने 7892 को कॉमन ले लिया, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, अब हमने एक ब्रैकेट लगाई है. ठीक है, अब जब हमने यहाँ से कॉमन लिया है 7892 में से, यहाँ 7892 इंटू 2 में से 7892, तो क्या बचा 2. यहाँ से जब हमने 7892 कॉमन लिया तो क्या बचा 1. यहाँ से जब हमने 7892 कॉमन लिया तो क्या बचा 1. और जब हमने 7892 यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा 1. सो 2 + 1 + 1 + 1, BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इट कम्स 5. नाउ मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. Okay, now the C part is 1002 into 36 plus 1002 into 58 plus 1002 into 6. Now see here again what we are seeing कि यहाँ पे भी 1002 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो अब हमने क्या कॉमन लेना है, 1002. now into, now we will put a bracket here. now here what it comes 36. यहाँ से जब आप 1002 कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 58. इसको तो हमने बाहर ले लिया. अब यहाँ से जब आप 1002 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 6 बचेगा. नाउ यू विल सॉल्व द ब्रैकेट, व्हाट वी विल गेट 100. नाउ मल्टीप्लाई, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ हमने यूज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. नाउ सी हियर 4 into 120 into 125 plus 8 into 120 into 125 minus 2 into 120 into 125. नाउ सी हियर, पहले हम इतना पार्ट लेंगे क्योंकि अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस साइन भी है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है, माइनस साइन भी है. तो पहले हम इतने पार्ट में देखेंगे. सी 120 into 125 एंड हियर ऑल्सो 120 into 125. नाउ सी हियर, जब आप 120 into 125 कॉमन लोगे, ठीक है, बाहर निकाल दिया हमने उसको, तो क्या बचेगा 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस का साइन लगा दिया. ठीक है, इतना तो कॉमन ले लिया आपने, तो अभी 4 के बाद क्या है, प्लस का साइन. सो यू विल पुट अ प्लस साइन हियर. नाउ अब जब आपने फिर से 120 into 125 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 8. नाउ ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ठीक है,
Now see, minus 2 into 120 into 125 we will copy as it is in the next step. ठीक है, अब 4 plus 8 सॉल्व करेंगे, क्या मिल गया 12. ठीक है, now see again, यहाँ पे again 120 into 125 here also and 120 into 125 here also. Again we will take common. Okay, common क्या लिया 120 into 125. So see 12, यहाँ से जब इतना पार्ट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 12 इतना कॉमन तो ले लिया. अब यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, एक माइनस का साइन, देन 2. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से भी 120 इंटू 125 कॉमन लिया. और आ गया ब्रैकेट के बाहर, देन 12 माइनस 2 इज 10 इंटू 120 एज इट इज इंटू 125 एज इट इज. ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर साइन कौन सा है, प्लस का. उसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. यू कैन सी हियर देयर इज अ माइनस साइन इन द ब्रैकेट. ठीक है, ओके फाइन.